Okay. So fantastic. Kahoot. I love how they do a little dance. Okay. Number one. Fantastic. Okay, we're gonna have to stop there. We won't have time for. ये कुछ छोटी छोटी मेमोरीज है जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं एंड गेम्स खेल रहे थे. लास्ट क्लास था तो ग्रामर के रिलेटेड थोड़ी थोड़ी गेम्स खेली. लास्ट में क्लिक करेगा पिक्चर्स. एंजॉयड. So 2022 in September I come UK From China. Yeah. So when I was filled in PhD interview in UK, so I applied UK master's degree. So I'm successful, and in September 2022 I come in UCA, at UCA. So you tried. So you failed this PhD round in March. That's why you applied for MA Visual Communication, right? Yes. Yes. Okay. I will. Maybe I can show you. I can progress. You will prepare one. You need to find a PhD supervisor. Yeah. This is very, very important. You will find other contact. And the second thing, if you find your PhD supervisor, they will consider your research proposal. They will consider your academic research is good or not. And they will consider your course is similar or not. If not not similar, They or will- if they don't, maybe if your course is the same research field is similar, they will consider your research skill. Yeah, if your research skill is not good, they will reject. Okay. They will reject you. Okay. So your research proposal is very, very important. Right. And this is the research proposal can show your research skill, research ability. Yes, it's very, very important. Okay, got it. And Why didn't you do PhD from China? China, my MA is free. Why didn't you did your PhD in China? Because this is if I want to go to university for my teaching, for my academic career, PhD is Necessary. a basic Yeah. requirement. But then you can do PhD in China, right? Yes, I will. Then do. why didn't you did in China? This is China basic requirements. China does not have good PhD. UK PhD is very, very good in China. The UK reputation in China is high. Okay, China in China you demand I will show UK you. PhD. I will show you the many. I will show you. Listen, Philip, Hmm. UK PhD degree is more valuable in China. Yes. Yes. Oh, okay. Because This is China. it is- Chinese. I don't understand. if I want to get a good job, UK PhD
works the best. reputation is high. If Right. I get China PhD disagree, I will go to law university. Yeah. So you know, Right. if I want to like the number one or number two in China, the number one university, I will get a good, From good UK. yeah, a famous Okay. Got it. university. मेरे काफ़ी चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक देयर इज़ अ गर्ल हु नो इंग्लिश बट इतना भी नहीं तो ये लोग हमेशा इवन रनिंग क्लासेस जो होते हैं वहाँ पे भी उन लोग का गूगल ट्रांसलेशन ऑन नहीं होता है जो मैम बोल रहे होते हैं सब तुरंत चाइनीज़ में ट्रांसलेट हो रहा होता है आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव यार Thank you. Yeah. सो ये क्लिप्स आपने आगे देखी होगी आई डोंट नो आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया yeah, it's very difficult to understand because there was a language barrier because उनको इंग्लिश नहीं आती है इतनी फ्लुएंटली तो आई ब्रीफली एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली हमने क्या बातें करी सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेरी मच प्रॉपरली एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ मुझे पता नहीं था आपको पता हो तो मुझे ज़्यादा इसके ऊपर नॉलेज आप कमेंट्स में मेंशन करो पर जितना मैं जान पाई हूँ इनसे या फिर मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं उन लोगों से तो द थिंग इज़ कि वो अभी मेरे साथ सेम कोर्स में ठीक है तो MA विजुअल कम्युनिकेशन वो कर रही है बट दैट्स हर सेकेंड डिग्री इन मास्टर्स वो फर्स्ट डिग्री ऑलरेडी करके आई थी फ्रॉम चाइना मास्टर्स इन डिज़ाइन एंड यहाँ पे वो मास्टर्स इन विजकॉम कर रही है मतलब विजुअल कम्युनिकेशन कर रही है एंड साथ में अभी उसने PhD के लिए भी अप्लाई कर दिया है नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ एंड उसका रिस्पॉन्स उसको अक्टूबर में आएगा सो ये जो प्रोसेस करा उसमें मुझे बहुत क्वेश्चंस थे कि वीज़ा प्रोसेस उसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज PhD टेक्स 3 years मिनिमम 3 years ज़्यादा भी लग सकते हैं 3 साल का लगने ही वाला है दैट इज़ ऑब्वियस ऐसा तो 3 से 5 साल का पीरियड होता है कि 5 साल में मैक्सिमम आपको कंप्लीट करना पड़ता है एंड 3 साल लगते ही है मिनिमम तो ऑब्वियसली उतना उसके पास पीरियड नहीं है फॉर द वीज़ा थिंग लाइक वीज़ा नहीं है उसके पास उतना बिकॉज वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर अ ईयर एज सुन एज यू कम्प्लीट योर फर्स्ट डिग्री मास्टर्स डिग्री हो गई इन UK तो मैंने उसको ये सब क्वेश्चंस पूछे थे फिर उसने PhD अभी क्यों करा पहले ही उसने PhD के लिए अप्लाई क्यों नहीं करा थिंग्स लाइक दिस सो वो पहले ट्राई कर रही थी फ्रॉम चाइना में बैठ के वो ट्राई कर रही थी कि वो UK में PhD करने ही आए बट देन एक बार उसने ट्राई करा मार्च में जो उसका फेल हो गया एंड उसने रीजंस उसको ये सारे मिले थे कि उसका जो कोर्स था वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था PhD करने के लिए UK में एंड UK में अगर PhD करना है तो दे आस्क फॉर लॉट ऑफ रेलेवेंस विथ योर मास्टर्स डिग्री आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ UK में होता है अक्रॉस दी वर्ल्ड आप कहीं पे भी PhD पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग कि आपका मास्टर्स का डिग्री और PhD जो आप जिसमें कर रहे हो वो एकदम क्लोजली रेलेवेंट है कि नहीं है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है तो वो नहीं बैठ रहा था इन प्लेस वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज दिस एंड इसलिए उसका रिजेक्ट हो गया था ऐसा सोचा कि वो यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री करने आए विस्कॉम की मतलब विजुअल कम्युनिकेशन में एक बार मास्टर्स की डिग्री यहाँ से ले लें एंड फिर वो चालू करें PhD इन विजुअल कम्युनिकेशन तो ऐसे करके इसने प्लान आउट करा एंड द सेकेंड थिंग इज़ मैंने ये क्वेश्चन करा उसको कि तूने PhD चाइना में ही क्यों नहीं करा वाई नॉट इन ओनली चाइना एंड देयर शी क्वेश्चन कि UK में से PhD करो तो इट्स वेरी 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 क्वालिफाइड लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड
जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, उसमें एक्सेप्टेंस आपकी हो जाती है वेरी इजीली। एक हायरकी होती है ना, तो वो हायरकी में टॉप पे आ जाता है अगर आपने पीएचडी यूके से करा है तो। वेदर अगर आप कहीं और कोई यूएस से भी करते हो, कनाडा से करते हो, या कहीं से भी करते हो, इंडिया चाइना, वेर एवर अक्रॉस द ग्लोब, इतना ज़्यादा टॉप हायरकी में नहीं आता है। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ डूइंग पीएचडी इन यूके इज़ दिस। इसलिए उसने पीएचडी यूके से ही करना था। भले वो यूके से पीएचडी क्लियर करके शी इज़ प्लानिंग टू गो बैक टू चाइना एंड वर्क ओवर देयर ओनली, शी डोंट वांट टू वर्क इन यूके, बट देन उसकी जो टारगेट है, जो यूनिवर्सिटी को वो टारगेट करिए, वहाँ पे अगर शी वांट्स टू वर्क देन शी हैज़ टू हैव PhD degree, and that too from the very renowned university based, which obviously has UK. And when it comes to creative things, UK is obviously the top in the hierarchy. So these are the major reasons to do PhD, and that too why from UK. Okay. Secondly, उसका वीज़ा का प्रोसेस अभी उसने अप्लाई कर दिया है, उसने सितंबर है, वो सितंबर इंटेक वाली है, तो राइट नाउ यू ओके, फर्स्टली इन यूके इफ यू आर डूइंग वन डिग्री यू कैन नॉट डू अदर डिग्री, स्पेसिफिकली मास्टर्स एंड पीएचडी आप साथ में नहीं कर सकते हो, बट देन व्हेन यू आर डूइंग योर मास्टर्स यू कैन अप्लाई फॉर योर पीएचडी. ओके, सो स्टार्ट यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इट, बिकॉज उसमें वो लोग अपना उसमें प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द सुपरवाइजर, पीएचडी सुपरवाइजर, जो आपको सुपरवाइज करेगा आपकी रिसर्च जर्नल जो बनाओगे उसके ऊपर. ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट अलोन, यू नीड समवन हु विल हेल्प यू टू सुपरवाइज इट एंड गाइड आउट, एंड जो भी उनका नाम हो, उनका एज एडिटर आपका नाम आएगा, आप जो भी रिसर्च जर्नल बनाओगे उसके अंदर. तो you need, without PhD supervisor you cannot move forward. First find that, then you have to submit your research proposal कि आप किस बेसिस पे रिसर्च करना चाह रहे हो, एंड वो रिसर्च प्रपोजल आप सुपरवाइजर्स जो भी आपने शॉर्टलिस्ट करे उन लोग को आप भेजोगे, एंड इफ़ ही और शी योर सुपरवाइजर, ही शी they means who do not consider themselves male or female, तो whoever that person is they will accept you're not like, उनको अगर relevant लगेगा they will accept, उनको नहीं लगेगा तो they won't accept it. तो likewise you have to send your proposals, research proposals, and वो पूरा period आपको 6 महीने लगता है. तो उसने अभी ये मार्च में अप्लाई कर रहा है, बाय द टाइम शी विल गेट ग्रेजुएट, मतलब मास्टर्स उसका कंप्लीट हो जाएगा सितंबर 2023 में, उसका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा. तो उसके बाद उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा, जैसे उसका कंप्लीट होगा विद इन अ मंथ उसको रिस्पॉन्स आ जाएगा. सो बाय अक्टूबर शी विल हैव अ रिस्पॉन्स कि उसके पास सुपरवाइज़र है कि नहीं है, किसी ने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा. यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हाँ यू कैन गो ऑन, तो उसने पहले यूनिवर्सिटी से भी आपको कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि डू यू अलाउ मी to work under your what you say, under your name, because university भी चाहिए होता है when you are submitting. That becomes easy, you can do it alone also with your supervisor, but then if university is in combination with you then it becomes very easy, things get placed on. So यूनिवर्सिटी से, मेरी यूनिवर्सिटी उसने UCA से ही कर रही है, तो उसने यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है. सुपरवाइजर्स को भी उसने प्रपोजल भेज दिए है. नाउ शी विल गेट एन आंसर बाय अक्टूबर 2023, एंड जैसे उसको आ जाता है वो जनवरी 2024 से पीएचडी में काम कर, पीएचडी नहीं पर रिसर्च जर्नल चालू कर सकती है प्रोसेस. सो दैट्स द एंटायर प्रोसेस. एंड हाँ, वीज़ा BRP उसका क्या, एक बार वो उसका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट कोई कर देगा सुपरवाइज़र, तो वो सुपरवाइज़र की डॉक्यूमेंटेशन होगी कि हाँ दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर एज ए टीम फॉर द रिसर्च प्रोसेस, एंड यूनिवर्सिटी से भी लेटर वो ले लेगी, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा. उसके बाद शी कैन अप्रोच चाइना एम्बेसी इन चाइनीज़ एम्बेसी इन UK, and she can reapply the process for the visa to extend it and why and give reasons. जो एम्बेसी होगी वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करेगी कि ये क्या है सिस्टम, एंड यूनिवर्सिटी
ऑब्वियसली नो द प्रोसेस, उनको पता है ये क्या क्यों कर रही है एंड ऑल, तो यूनिवर्सिटी हेल्प आउट कर देगी, बस वो एक्सेप्ट कर देगी, तो एम्बेसी भी एक्सेप्ट कर देगी यूके एम्बेसी के साथ कम्युनिकेट करके, तो थिंग्स गेट प्लेस आउट ईजीली। एंड जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगी, यू विल गेट योर वीज़ा पासपोर्ट, योर वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट अगेन to you back, and then you will get a new BRP also, because now again you are a student, so you will get your new BRP. so हाँ, things does happen यहाँ पे। अब यूके में आके आप न्यू डिग्री भी कर सकते हो, बट हाँ, यू नीड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज आपको वापस से यहाँ पे बैठे बैठे वीज़ा रिन्यू करना है, तो उसमें पैसे ज़्यादा जाते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, तो मैं अमाउंट नहीं बोलूँगी, बट या इट्स अ बल्क ऑफ अमाउंट, छोटा अमाउंट नहीं है। फर्स्टली इट इज़ पाउंड्स, करेंसी वैसे ही बड़ी है, एंड इफ़ यू आर इंडियन लाइक आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया में अगर मेरी करेंसी देखने जाऊँ तो वो मुझे थोड़ा ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा, बिकॉज मेरी इनकम सोर्स भी इंडियन करेंसी है एंड एक्सपेंस भी मैं इंडियन करेंसी कर रही हूँ। यहाँ पे इफ़ यू आर अर्निंग देन यू आर गुड टू गो, इफ़ यू आर नॉट अर्निंग देन income source is Indian currency and then expense is in pounds, so it is automatically expensive. So it is expensive if you are ready to expand money, move forward. If you do not want to, then there are still many organizations who help you out. There are some universities who help their students, their kids, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मेजॉरिटी मैंने ऐसा सुना एक प्रोफेसर की बात करने के बाद कि यहाँ पे अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी अप्रोच करते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आना है और पीएचडी यूके से करना है, तो पहले कोई कोर्स ले लो 6 महीने का, या शॉर्टेस्ट कोर्स कोई ले लो, डिग्री कोर्स ले लो या नॉर्मल कोई कोर्स ले लो, एंड फिर पीएचडी अप्रोच करो while you are doing that thing. But you obviously if you're doing PhD, ये तो पता ही होगा कि मास्टर्स चाहिए ही चाहिए, एंड मास्टर्स होगा तो बैचलर्स भी चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो मूव फॉरवर्ड, गुड टू गो, यू आर एलिजिबल इनफ, एंड इफ योर रिसर्च जर्नल इज ऑन पॉइंट देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, राइट। तो हाँ, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करी थी, मुझे ये पता पड़ गया था काफ़ी महीने पहले कि शी इज़ डन दिस, काफ़ी टाइम पहले कि उसने मुझे फैब में बात करी थी कि हाँ शी इज़ प्लानिंग ऑल दिस थिंग्स, बट एकदम स्ट्रांगली मुझे पता नहीं था कि ये एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं। मुझे तो ये लगा था कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज देन शी अगेन हैव टू गो टू चाइना, वहाँ पे रिन्यू करना पड़ेगा वीज़ा एंड फिर यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगा था। बट देन फिर उसने यूनिवर्सिटी में बात करी तो पता पड़ा कि नहीं, इट इज़ पॉसिबल सिटिंग हियर ऑल्सो, तो उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एंड अभी लास्ट वीक ही उसका सब फाइनलाइज हो गया, लास्ट वीक ही उसने प्रपोजल डाला, तो नाउ एवरीथिंग इज़ गेटिंग इनटू प्लेस। तो इसलिए फिर मैंने प्रॉपर रिसर्च चालू करी, थोड़े बहुत प्रोफेसर से बात करी, इन्फॉर्मेशन खुद समझी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू अंडरस्टैंड, कीन टू नो अबाउट इट कि ये है कैसे, पॉसिबल कैसे है एंड ऑल। तो या it is possible, so things get into place, but you just need to research out also। मुझे भी PhD करना है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो रिसर्च करने में क्या जा रहा है, खुद को भी कभी ना कभी हेल्प हो जाएगी और आप लोग को भी बता दूँगी। तो या दिस इज़ समथिंग न्यू दैट आई लर्नड विद इन अ मंथ, सो दिस इज़ फॉर यू गाइज। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ऐसे कुछ PhD करने में तो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, ईजीली पॉसिबल है। एंड PhD किसको नहीं पसंद लाइक अपने नाम के पहले PhD मतलब डॉक्टर लगेगा, इट्स इंटरेस्टिंग राइट। तो मेहनत ज़्यादा है नो डाउट, बट या इफ़ यू वांट समथिंग यू नीड टू वर्क हार्ड। सो करेंगे, हम भी करेंगे, विल ऑल्सो वर्क हार्ड। मैं जिनको यहाँ पे PhD करना है वो भी वर्क हार्ड करेगा तभी मिलेगा। तो या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, वॉट एवर यू आर डूइंग। इफ यू आर नॉट डूइंग PhD स्टिल यू आर डूइंग समथिंग, बिकॉज तभी यू हैव योर लग्जरीज और योर इवन नीड्स। सो या गुड टू गो, गुड गोइंग, बेस्ट ऑफ लक एंड एन्जॉय योर लाइफ ऑल्सो व्हाइल यू वर्क हार्ड। बाय एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, याद रखिए।
बाय बाय, थैंक यू।